कश्मीर पर पाकिस्तान के पीएम इमरान को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान की एक बार फिर से आलमी बेइज्जती हुई है। अमेरिका के सदर ट्रंप ने हिंदुस्तान को एक अच्छा पड़ोसी बताया और कहा कि कश्मीर पर सालसी तभी हो सकती है जब दोनों मुल्क राजी होंगे, यानी कश्मीर पर वैसा ही होगा जैसा मोदी चाहेंगे। कश्मीर पर प्रोपेगेंडा चला रहे पाकिस्तानी सहाफियों को ट्रंप ने फटकार भी लगाई। वहीं इमरान ने कहा कि अब हिंदुस्तान गांधी नेहरू का मुल्क नहीं रहा। पिछले 6 सालों में वहां हिंदू आइडियोलॉजी का कब्जा हो गया है। इस बीच इमरान ने एक इंटरव्यू में कबूला है कि पाकिस्तान की जमीन पर दहशतगर्दी फल फूल रही है। स्पेशल एट 4 में आज इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। Now there was human rights violation in Kashmir. 50 days lockdown, no internet, no food, no nothing. So you know what do you want to do for the Kashmiri people? Where do you find reporters like this? These guys are fantastic. Allege that Pakistan is the hub of terrorism. Do you endorse that or do you disagree with that? I mean, I heard a very aggressive statement yesterday. I don't have to say that. I was there. I didn't know I was going to hear that statement, I had said, but I was sitting there and I heard a very aggressive statement yesterday from India, from the Prime Minister, and I will say it was very well received within the within the room. The statement itself, that was a big room. There were 59,000 people. But it was a very aggressive statement. And I hope that they're going to be able to come together, India and Pakistan, and do something that's really smart and good for both. And I'm sure there's always a solution. And I really believe there's a solution to that. President Trump heads the most powerful country in the world. And the most powerful country in the world has a responsibility. And you very kindly wanted to mediate in this. And you also said that both of us, India and Pakistan, has to agree to mediation. But unfortunately, India is refusing to talk to us. I will say that many countries wanted to meet with me and us, the United States, during this very short 3-day period, and we were unable to meet with many of them. So we'll be talking about trade and other things. Obviously, Afghanistan, which is a big issue for us Pakistanis, because stability in Afghanistan means stability in Pakistan. We also want to talk about all 3 neighbors, Afghanistan, India, Kashmir, and of course Iran. We will discuss the situation there, because all 3 neighbors of Pakistan. He lives in a very friendly neighborhood. I would always stand. If I can help, I would certainly do that. And it will be dependent on both of these gentlemen. One without the other doesn't work if you're going to do mediation or if you're going to do an arbitration. But certainly I would be willing to help if both Pakistan, let's say, and India wanted me to do that. I am ready, willing, and able. It's a complex issue. It's been going on for a long time. But if both wanted it, I would be ready to do it. I have a very good relationship with Prime Minister Modi. I have a very good relationship with Prime Minister Khan. And if at any time they say, we have some points that we think we can maybe iron out, I think I'd be an extremely good arbitrator. I've done it before, believe it or not. And I've never failed as an arbitrator. I've been asked to arbitrate. I trust Pakistan, but people before me didn't. तो अभी आपने ट्रंप को सुना, उन्होंने कहा कि अगर दोनों मुल्क चाहते हैं तो वो मीडिएशन के लिए, सालसी के लिए तैयार हैं कश्मीर के मुद्दे पर। लेकिन हम आपको ये बता दें कि इमरान खान लगातार ये कह रहे हैं सालसी के लिए कि अमेरिका बीच में आए और बातचीत करे, लेकिन हिंदुस्तान ने बारहा ये साफ कर दिया है कि ये उसका अंदरूनी मामला है और वो किसी तरह की मीडिएशन नहीं चाहते। अगर आपको याद हो कि ट्रंप से जब लास्ट मुलाकात हुई थी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की, तब उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि हम इस तरह के मामले के लिए किसी तीसरे को परेशान नहीं करना चाहते हैं। उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएं कि इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कबूला है कि आईएसआई ने अल कायदा को बनाया था, तो खुद उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है और उसके बाद वो हिंदुस्तान को पीस का पाठ भी पढ़ा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ जुड़ गया है। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ डॉक्टर गुलरेज शेख जुड़ गए हैं,
बीजेपी के लीडर हैं। इसके साथ ही डॉक्टर एसपी पांडे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय कुलकर्णी साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ऋषि मिश्रा साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है इस शो में। शुरुआत डॉक्टर गुलरेज मैं आपसे करना चाहूंगी। हालांकि हिंदुस्तान ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो किसी तरह की मीडिएशन बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन मुझे ये बताइए आप फिर भी क्यों ट्रंप लगातार ये कहते हैं कि अगर दोनों मुल्क चाहेंगे तो वो मीडिएशन के लिए, सालसी के लिए तैयार हैं। वो ये भी कहते हैं कि मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि इमरान खान भी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। देखिए, एक बात बताएं बुशरा जी, एक भिखारी आपके पास खड़ा रहेगा और आपके पीछे पड़ जाएगा कि भीख दो भीख दो भीख दो, तो आप सीधे तो मना नहीं करोगे, तरीके से टाल दोगे। बस वही सदर ट्रंप कर रहे हैं कि ठीक है, यदि दोनों पक्ष मान जाएंगे तो मैं कर लूंगा। अब दूसरे पक्ष ने, भारत ने तो ये कह ही दिया है कि आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि तुम दोनों मेरे दोस्त हो तो मैं अच्छी तरह से कर सकता हूं, लेकिन दोनों माने तो उन्होंने एक तरह से एक भिखारी को टाल दिया है उन्होंने बड़े प्यार मोहब्बत से, क्योंकि सामने तो उसकी बेइज्जती कर नहीं सकते थे खुलकर कि मैं कुछ नहीं करने वाला हूं बोलकर। तो बहुत अच्छी तरह से, बहुत प्रेम से जूते मारे हैं इमरान खान साहब को ट्रंप साहब ने, और उनको अपनी हैसियत याद दिला दी। और उन्होंने जहां एक पत्रकार को टोका कि फ्रॉम वेयर यू गेट दीज जर्नलिस्ट, इसका मतलब यह हुआ कि वे समझ गए और उन्होंने समझा भी दिया इमरान खान को। मैं समझ गया उनकी नेक्स्ट लाइन उनकी ये भी थी, दे आर फैंटास्टिक, दे आर फैंटास्टिक। वही तो बोल रहा हूं मैं आपको। तो इसका मतलब तो दे आर फैंटास्टिक का मतलब तो गाली देना नहीं होता है ना? नहीं, फैंटास्टिक देखिए क्या है कि मैं इतनी अंग्रेजी मैं भी समझती हूँ। हाँ, तो मैं किसी को ये कहूँ कि वाह, ऐसे इतने अच्छे आपको पत्रकार कहाँ से मिलते हैं, फैंटास्टिक मतलब अच्छा ही हुआ ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने तरीके से ताना मार दिया कि आप कहाँ से पकड़ पकड़ के लाते हो इसों को। तो उन्होंने ये बता दिया कि मैं समझ रहा हूँ कि ये ISI हो तुमने बिठाए हैं यहाँ पर, और कहाँ से लाए इनको जी। अब इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या हो सकती है इमरान खान की। ओके। ऋषि मिश्रा साहब, क्या आपको लग रहा है कि हम अपनी तरह से चीजों को इंटरप्रिटेट करना चाहते हैं? जो भी जाहिर सी बात है, जो रिश्ते अमेरिका के हिंदुस्तान से हैं और जिस तरह के बिजनेस इंटरेस्ट अमेरिका के हिंदुस्तान से हैं, वो जाहिर सी बात है किसी भी कीमत पर पाकिस्तान से हो ही नहीं सकते हैं। पाकिस्तान से जो उनका रिश्ता है वो सबको पता है किस तरह का है, किस बिना पर है और क्यों है। और खासतौर पर अभी की बात करें तो जाहिर सी बात है अफगानिस्तान की वजह से ये बातचीत और ज्यादा आगे बढ़ रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरह की बातचीत हुई है और बार बार ट्रंप जब ये कहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक साथ लाके खड़ा करते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान को इस पर एतराज अपना जाहिर करना चाहिए? सर जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि भारत एक बड़ा मार्केट है अपने आप में, और एक बड़ा मार्केट जो देश है, जो जिसका एक बड़ा एक बिजनेस रिलेशन है इंडिया से अमेरिका का, तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि भारत को किसी भी बिंदु पे नाराज़ किया जाए। और उसका जवाब आप देखिए हैं कि जब उनसे पाकिस्तान मीडिया ने बात करते हुए पूछा तो इमरान खान को भी उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि आपके जो पड़ोसी हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो इसका ये अर्थ है कि इमरान खान को उनका जवाब मिल गया है कि जो भारत और अमेरिका का जो रिलेशन है बहुत ही प्रगाढ़ है, और आज से नहीं है, बहुत पहले से है। तो लेकिन आप अमेरिका के जो बिहेव है उसके दूसरे पहलू को भी देखना होगा कि अमेरिका अपना हित साधने में बहुत ही इंटेलिजेंट देश मैं मानता हूं। आप अब इतिहास देखिएगा, जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई, जब याया खान जब सेना अध्यक्ष हुआ करते थे पाकिस्तान का, और जब हमारी देश से पाकिस्तान की लड़ाई हुई, बांग्लादेश वाली लड़ाई, तो अमेरिका ने किस प्रकार से पाकिस्तान को मदद किया, और पाकिस्तान को हमेशा अमेरिका आर्थिक रूप से मदद करती रही है। लेकिन इन दिनों 2 दशक से आप देखेंगे जो रिलेशन भारत का अमेरिका से बढ़ा है, क्योंकि भारत एक बड़ा मार्केट है और अमेरिका इसको अनदेखी नहीं कर सकती है। दूसरी बात,
आज देखिए इमरान खान की बेचैनी देखिए उसरा जी। इमरान खान प्रधानमंत्री हैं, उससे पहले आप ही की डिबेट में मैंने हम आपने चर्चा किया था कि गृह मंत्री ने, वहां के गृह मंत्री ने क्या बयान दिया था। आज प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि अलकायदा को हमारे ISI जो है उन्होंने ट्रेनिंग दिया है, उस्मा बिन लादेन को हमने रखा और हमने ट्रेनिंग दिया। तो पाकिस्तान के हर दिन हर रोज उनके ही जो अधिकारी हैं या मंत्री हैं या खुद प्रधानमंत्री पोल खोलने पे लगे हुए हैं। तो पाकिस्तान किस मुंह से भारत के विरुद्ध लड़ेगा या पीस की बात करेगा? मैं एक बात करके खत्म करना चाहूंगा। जैसे ICG में भी देखिए, ICG में उनके लॉयर ने खुद कहा कि कश्मीर में जो इमरान खान राग अलाप रहे हैं कि वहाँ डेडलॉक जैसी सिचुएशन है। उन्होंने खुद कहा ICG में जो पाकिस्तान के लॉयर ने कि हमारे पास ऐसे कोई सबूत नहीं है। UNHRC में आपने देखा कि उनको मुंह की खानी पड़ी। और 18 अक्टूबर का मैं इंतजार कर रहा हूं और उस दिन मेरे को डिबेट में बुलाइएगा। FATF में 18 अक्टूबर का रिजल्ट आने वाला है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आएंगे तो मैं इमरान खान को, आपका चैनल 20 देशों में देखा जाता है। इमरान खान जी से मेरा यह निवेदन है कि रोटी का व्यवस्था 18 अक्टूबर के बाद कर ले अपने देशवासियों के लिए। जी, तो संजय कुलकर्णी साहब, क्या आपको लग रहा है ये एक्सेप्ट करने का नाटक कि देखिए ISI ने ही अलकायदा को बनाया? देखिए ये जो चीजें वो एक्सेप्ट करें, दुनिया को पहले से ही पता है और इसमें कोई उनसे किसी वजाहत की या एक्सेप्टेंस की जरूरत भी नहीं है। एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। लेकिन अब वो खुले तौर पर एक इंटरनेशनल मंच पे जाकर इसको एक्सेप्ट करते हैं। क्या आपको लगता है ये पूरा डर, ये पूरी नौटंकी, ये एक्सेप्ट करने का ये पूरा नाटक, ये सिर्फ इस वजह से है कि FATF में उन्हें लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाए और उनकी मुश्किलें थोड़ी सी आसान हो जाए? इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान ही नहीं, इससे पहले मुशर्रफ ने भी एक्सेप्ट किया है और उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि ये हमारे हीरो होते थे और इसमें कोई शक नहीं है। मुजाहिद कहा जाता था। बिल्कुल, उन्होंने कहा है हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी, ये सब उनके हीरो हुआ करते थे। तो ये जो बातें हैं ये पाकिस्तान में सबको मालूम है, इसमें कोई नई बात नहीं है। पर हाँ, इमरान खान जो है वो अपने आप को अलग दिखाना चाहते हैं, अपने आप को इससे अलग बताना चाहते हैं कि मैंने जो इनहेरिट किया है वो इस तरह का माहौल इनहेरिट किया है। पुराने पाप हैं। तो आप मुझे मौका दीजिएगा। आप मुझे एक तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मैंने नहीं बनाया है, ये पहले से बना हुआ है और इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ये एक इमरान का अपना तरीका है बताने का। ही इज ट्राइंग टू गेन सिंपैथी, ही इज ट्राइंग टू गेन सिंपैथी, दैट्स द बेसिक थिंग। उसके बावजूद भी अब सबको मालूम है, अब ट्रंप भी मजाक में उसको बताने की कोशिश करे कि हाँ मैं समझता हूँ आपके बहुत अच्छे पड़ोसी हैं। तो ये एक सार्कास्टिकली एक तरीके से बताना है उनको कि भाई हम समझते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ट्रंप को भी वो जो बार बार कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भी मेरे बहुत अच्छे जिगरी दोस्त हैं और इमरान खान भी, आप भी मेरे अच्छे दोस्त हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ट्रंप ये बार बार जब इस तरह की बातें करते हैं, हम मीडिएट करना चाहते हैं, उनका मकसद है उनके जो ट्रुप्स हैं, जो तकरीबन 14,000 जो आज अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, उनको कैसे निकाला जाए। बस उसको वो मीडिएशन का ऑफर करें, कुछ भी करें, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी अगले साल इलेक्शंस अमेरिका में, वो भी अमेरिकन को बताना चाहते हैं कि देखो चाहे मुझे हिंदुस्तान जो है ना बुलाए मुझे मीडिएशन के लिए, वो ना नहीं कह रहे हैं। मुझे भी मालूम है कि दोनों देश आपस में ये जो है मसला सुलझाना चाहते हैं और उन्हें भी मालूम है कि सिमला एग्रीमेंट के बाद ये दोनों देश ही मसला सुलझा सकते हैं। लेकिन वो क्यों बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने कमिट किया है अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को, अमेरिकन को, कि मैं अफगानिस्तान से पुल आउट करूंगा। उन्हें अब मालूम है कि पुल आउट करने में उनको दिक्कत आ रही है, तो वो मतलब हर तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को खुश रखना चाह रहे हैं। उधर इमरान खान को भी ऑफर देना चाह रहे हैं और उनको ये भी मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या कहते हैं, उनका स्टैंड इसके ऊपर क्या है। लेकिन ये सब इसके बावजूद भी सबको मालूम है कि जो आतंकवाद है वो पाकिस्तान से पलकता है, पाकिस्तान से आता है और उसका केंद्र बिंदु पाकिस्तान है। तो आपको लग रहा है कि संजय जी कि अभी जब UN में स्पीच होगी जिसमें वजीर आजम की पहले होगी, उसके बाद इमरान खान की भी स्पीच होने जा रही है, उसमें
तो आपको लगता है कि वहां पर सीधे तौर पर, क्योंकि हम यहाँ देखें हाउडी मोदी प्रोग्राम में भी दहशतगर्दी को लेकर किस तरह से बात की गई, उसके बाद लगातार जब भी इंटरनेशनल मंच पे जाते हैं वजीर आजम तभी दहशतगर्दी की बात करते हैं, उसका सीधा ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से होता है क्योंकि हमारा पड़ोसी वही है। और अब जब यूएन में वो स्पीच देंगे, ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है, क्या आपको लगता है वहां पर भी मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी होने जा रहा है? नहीं, इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जो हैं अपने वो बड़े प्यार से बताते हैं और वो डायरेक्टली कभी भी पाकिस्तान का नाम नहीं लेंगे, कभी भी। No, that's what I said. कि वो दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं, तो we know कि वो he is talking about Pakistan. Absolutely, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अभी आप देखिएगा 20 साल हो गए, अभी तक अपने को टेररिज्म के डेफिनेशन का मालूम नहीं है कि हु इज अ टेररिस्ट। कोई कहेगा कि मेरा गुड और बैड टेररिस्ट या मेरा टेररिस्ट है, उसका फ्रीडम फाइटर है, मतलब दुनिया भर के उसके ऊपर तर्क वितर्क होते रहते हैं। लेकिन टेररिज्म का अपने पास अभी भी कोई क्लियर कट डेफिनेशन है कि टेररिज्म का मतलब ये है और इसका कहना ये नहीं है। और अभी भी ऑफ कोर्स प्रधानमंत्री को एक मौका मिला है यूएन जनरल असेंबली में कि जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, बालाकोट हुआ, जिसमें पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ खड़ी दिखी, किसी ने ये नहीं कहा, किसी ने खंडन नहीं किया कि आपने क्यों इस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया, किसी ने खंडन नहीं किया। चीन जरूर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, अलग अलग तरह के मफाद हैं पाकिस्तान के अलग हैं, और उसमें भी चीन के अपने मैं कहूँगा उनका पर्सनल इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट है, क्यों वो पाकिस्तान को खुश रखना चाहते हैं, क्योंकि उनका भी बैकयार्ड है जहाँ पे उनको परेशानी है, उसको भी इंडियन ओशन के लिए एंट्री चाहिए, तो उनकी वो अलग कंपल्शन है। लेकिन ये सब के होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री एक ऐसी मुझे लगता है ऐसे स्पीच देंगे, यस मतलब टेररिज्म जरूर, ट्रेड जरूर, क्लाइमेट चेंज जरूर, अपने मतलब he will try and I think he will show himself as a world leader. He will not focus himself कि छोटी मोटी बातें ये तो हम संभाल सकते हैं, पाकिस्तान means nothing to us, we can handle Pakistan. जाहिर सी बात है, we should not be obsessed with one country. Absolutely. और हमें अपनी और चीजों को देखना चाहिए, सिर्फ हमारे लिए पाकिस्तान एक वाहिद मुद्दा नहीं है। डॉक्टर गुलरेज शेख, बार बार पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, सवाल ये उठता है कि क्यों एक गैर जरूरी मुल्क को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाए? कभी कभी ऐसा लगता है कि वी आर ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान। नहीं बुशरा, हमको पाकिस्तान का जरा सा भी मतलब रत्ती बराबर भी ऑब्सेशन नहीं है। हमारे पास ज्यादा बड़े इश्यूज सॉल्व करने के लिए हम तो चाहते हैं हमारा जो ईस्टर्न फ्रंट है हम उस पर ज्यादा तवज्जो दें, लेकिन पाकिस्तान कुछ हरकतें ऐसी करता है कि आप ना चाहते हुए भी उसके ऊपर आपको ध्यान देना ही पड़ता है। जिस प्रकार से एक शैतान होता है वो शैतानी करेगा तो आपका ध्यान तो जाएगा ही जाएगा। वही स्थिति पाकिस्तान की है। मुझसे पहले बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया था ऋषि जी ने, मैं उसी को कंटिन्यूएशन करूंगा कि अभी FATF की बात हुई थी। डेफिनेटली पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ी समस्या है FATF की ग्रे से ब्लैक लिस्ट में जाने की, और वो तलवार जो है वो सतत रूप से उसके सर पर लटक रही है और भारत पूरा प्रयास करेगा कि उसको ग्रे से ब्लैक लिस्ट में डाले। लेकिन मेरी खुशी ज्यादा होगी कि वो ग्रे लिस्ट में अटका रहे बनिस्बत ब्लैक लिस्ट में जाने के, क्योंकि जो तलवार लटकी हुई होती है ना वो गिरी हुई तलवार से ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि एक बार वो ब्लैक लिस्ट में आ गया तो वो आ जाएगा, तमाम सैंक्शंस लग जाएंगे। लेकिन अपने आप को सैंक्शन से बचाने के लिए साहब अगर सैंक्शंस लग जाएंगे तो सारा पैसा उसका रुक जाएगा जो ऑलरेडी वो बिल्कुल कंगाली की कगार पर है। जी इसमें एक और पॉइंट है कि 27 पॉइंट पाकिस्तान को दिए गए थे FATF की तरफ से, जिसमें से सिर्फ 6 पे बोलने को जवाब दे पाए। हाँ देखिए पाकिस्तान ने जिस प्रकार से टेररिज्म की अपने आप को एक सेंक्टिटी और सेफ हेवन बना रखी है, वो ब्लैक लिस्ट पे आज नहीं तो कल तो जाना है, ये सब जानते हैं। ग्लोबल जितने भी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगने हैं वो भी लगेंगे ही सही, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं ये बात कि वो अपने आप को ग्रे लिस्ट से बचाने के लिए चाहे दुनिया को दिखाने के नाम पर ये कि हम, और इसीलिए वो इंटरनेशनल लॉबिंग करने की पूरी कोशिश कर रहा है, जहां से वो लॉबिंग कर सकता है वहां उन कंट्रीज को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। एक सवाल मैं उसके बाद ठीक है फिर मैं अच्छे पांडे जी आपके पास। हाँ गुलरेज जी, मेरा एक सवाल है, FATF की आपने चर्चा की, धन्यवाद, लेकिन FATF में चाइना को कैसे काउंटर करेंगे? और आप पार्टी के सीनियर नेता हैं, प्रवक्ता हैं, तो हमें ज्ञानवर्धन करें कि FATF में चाइना को यदि हैंडल करना होगा तो भारत सरकार का क्या रुख होगा,
इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे आप? देखिए, एक बात है कि जिस प्रकार से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल होती है उस प्रकार की बॉडी नहीं है FATF जहां पर चाइना या कोई भी मुल्क वीटो ले सके, तो वीटो तो संभव नहीं है वहां पर। तो लेकिन हर मुल्क के पॉइंट्स तो हैं, तो दूसरे देश जी हर मुल्क मुल्क के पॉइंट्स हैं, मैं वही बोल रहा हूँ। तो चाइना के अलावा दूसरे मुल्कों को साधने में डेफिनेटली भारत ज्यादा प्रयास करेगा, ये एक फैक्ट है, क्योंकि चाइना उनके साथ जाने वाला है जो दिखता है हमको। हम चाइना से भी प्रयास करेंगे, लेकिन चाइना के अलावा भी दूसरे मुल्क हैं जिनको हम इजीली साध सकते हैं, उसके लिए प्रयास होगा। ओके, एसपी पांडे जी, हम तमाम जगहों पर देखें, तमाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर हम ये देखें कि जहां जहां पाकिस्तान ने अपने लिए एक तरह से ये कहें कि एक कंफर्ट पाने की कोशिश की है, जगह जगह जाकर उसने अपने आप को दुखियारा, बेसहारा, बेआरो मददगार दिखाने की कोशिश की है। हर जगह उसे शायद कुछ जगहों से सिंपैथी तो जरूर मिली हो, लेकिन लताड़ जगहों से ज्यादा मिली कि भाई आपकी जमीन पर जो पहले हो रहा है उसको तो बंद करिए। एक इमरान खान जब चुनकर आए थे तो लोगों को लगा था एक नया चेहरा है, क्रिकेटर है, कुछ होप है, शायद कुछ अच्छा करे, नया पाकिस्तान का उन्होंने नारा दिया था। लेकिन ये साफ हो गया है कि नया पाकिस्तान हो ही नहीं सकता, क्योंकि पुराना पाकिस्तान इतनी जड़ों में घुस गया है कि नया वहां कुछ हो नहीं सकता है। बिल्कुल, इमरान खान की वर्तमान स्थिति में मुझे एक मिर्जा गालिब जी का शेर याद आ रहा है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि बड़े हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े बेआबरू होकर तेरे कुछ से हम निकले। विश्व में पूरे अन्य देशों, चाहे अमेरिका हो, चाहे आप देख ले वही अमेरिका जो हाउडी में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाकर खड़ा हुआ है, वही अमेरिका उनके पहुंचने पर वहां पे कोई प्रोटोकॉल के रूप में न किसी मंत्री को, न किसी सरकारी प्रतिनिधि को, न किसी जिम्मेदार व्यक्ति को स्वागत के लिए भेजता है। और जहां जहां इमरान जी ने अपील किया है, कहीं न कहीं अमेरिका ट्रंप साहब का बयान देखे तो उन्होंने पहले कहा कि कश्मीर और सुरक्षा के मुद्दे पर, चाहे आतंकवाद का मुद्दा है, हम भारत की स्टैंड के साथ खड़े हैं, और न सिर्फ खड़े हैं बल्कि उसे सदैव समर्थन देंगे, क्योंकि जो देश, ऐसे देश को कहीं से भी नैतिक अधिकार नहीं है आतंकवाद के खिलाफ या फिर वैश्विक साझेदारी को लेकर सहयोग प्राप्त करने का, कि हम आतंकवाद को बढ़ावा दें, जैसा कि आपने भी बताया कि स्वीकार किया इमरान खान ने कल ही। और उसके साथ साथ आतंकवाद का केंद्र, आतंक को पोषित करने वाला देश, आतंक का कर्ता धर्ता नियंता, चाहे आप 26/11 को लोगों को देख लीजिए, 26/11 की जो घटना हुई हमारे देश में, हाफिज सईद उनका मास्टरमाइंड, 9/11 को आप देख लीजिए, उनमें लादेन साहब भी पाकिस्तान में मिले। ठीक है, हर मतलब जितने भी घटनाएं हुई आतंकवाद से जुड़ी हुई, मैंने इसलिए कहा कि ठीक है सॉरी उसके लिए, लादेन में भी मिले वहां पे पाकिस्तान में। हाँ। और कहीं न कहीं आतंकवाद से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति ये सच स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन आप देखा वैश्विक मंचों में जहां भी ये गए उन्हें हर जगह निराशा मिली। और कहीं न कहीं आतंकवाद एक हमारे देश ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे इस समय प्रमुख मुद्दा है, जिससे लड़ाई के लिए अभी प्रधानमंत्री जी का कल का बयान सुनिए, 22 सितंबर को उन्होंने हाउडी मोदी के प्रोग्राम के दौरान कहा कि अब वह समय आ चुका है कि पूरा देश नहीं बल्कि विश्व समुदाय आतंकवाद के खिलाफ न सिर्फ लड़ाई, निर्णायक लड़ाई लड़े, बल्कि आगे आए और उसे पूरे खात्मे के लिए आगे आए और पूरी तरह से उसे खत्म करे। तो अब देखिए कि जैसे जैसे देखा कि कहीं भी इमरान जा रहे हैं तो न कोई व्यवस्था है उनके लिए, उन्हें मेट्रो जाना पड़ रहा है, आखिर क्यों ऐसा? एक विचारणीय प्रश्न है ना, जब आप अच्छा काम करेंगे तो पूरा विश्व आपके साथ रहेगा। बुशरा जी, मेरा एक कंसर्न है, इसमें अमेरिका को भी जवाब देना चाहिए। जो इमरान खान ने आरोप लगाए हैं कि एक समय था कि रसिया का एंगेजमेंट अफगानिस्तान में था और अफगानिस्तान से रसिया को हटाने के लिए अलकायदा को ISI ने ट्रेनिंग दिया अमेरिका के कहने पे। आज आप यदि आप पत्रिकाओं में जो छपे इमरान खान के बयान को देखे होंगे तो इमरान खान ने अमेरिका का भी पोल खोला है, तो अमेरिका को इमरान खान के बात का स्पष्टीकरण और जवाब देना चाहिए। यदि अलकायदा को और साथ में उन्होंने ये भी कहा रसिया को साधने के लिए आपने अलकायदा को ट्रेनिंग दिया है, तो अमेरिका भी आतंकवाद के फ्रंट पे अमेरिका का भी पोल खुलती हुई दिख रही है। यदि ऐसा नहीं है तो अमेरिका को बयान देना चाहिए और इमरान खान और पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। नहीं तो खड़ा कर रहा है, खड़ा आपने ट्रंप के बयान कल देखे, खड़ा कर रहे हैं अमेरिका इस समय अपने स्टैंड पर है, जो हमारे नहीं अलकायदा वाले बात क्यों कर रहे हैं? अलकायदा को बनाया गया था अमेरिका के कहने पर रशिया को साधने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां से रशियन फोर्सेस को खदेड़ना था, और ऐसे में अमेरिका ने पाकिस्तान का पूरा इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान
अभी तक वो तमाम चीजें भुगत रहा है। तो एक तरह से पाकिस्तान ने अमेरिका को भी कटघरे में खड़ा किया और ये कहा है कि हमारी ये बहुत बड़ी भूल थी कि हम अमेरिका के साथ उस वक्त गए। और अब जी, हम लोग बात अभी कर रहे थे गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट का। यदि अमेरिका ने अलकायदा को आगे बढ़ाया तो गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट नहीं होता, टेररिस्ट टेररिस्ट होता है। यदि अमेरिका इस प्रकार के गतिविधि में इन्वॉल्व था पास्ट में, तो अमेरिका को भी स्पष्टीकरण देना चाहिए। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि पहले आप किसी को बनाएं, फिर आप फंसाएं और फिर उसके बाद आप उसी के मसीहा बन जाएं।